Hello students, a very good afternoon to all of you. This is Abhishek Tiwari here, presenting you the very second lesson of your literature of class 11th, which is named The Address, written by Margaminko. This is a story. This story is nothing but a poignant account of daughter who goes in search of her mother's belonging after the war. This actually this story depicts the war condition between Nazi army and Holland, in which Holland got defeated, and under such circumstances, many of the Holland natives had to get away from their native places. So when she finds them, when the daughter she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. In it, students, actually we are just going to study about a poignant account of a daughter. Okay, simply a memoir of a daughter who actually went in a mission of searching her mother's belongings after the war with Germany, with Germany and Holland. So Germany और हॉलैंड के वॉर के बाद which was actually existed in the year 1945. So वॉर के बाद एक पूरी फैमिली जो पूरी माइग्रेट हो जाती है, इवन so many members of the families got migrated here and there. So after when the turbulence get over, so the daughter came and she began searching her mother's belongings. अपनी माँ की ज़रूरत जो घर की चीज़ें होती हैं उनको खोजने के लिए एक लड़की निकलती है, which is none other than the Margaminko. So when she finds them after a long struggle, जब वो उन चीज़ों को पा जाती है, अपनी मदर की जो मेमोरी में जो भी चीज़ें होती हैं, जो उनकी अपनी याद की चीज़ें होती हैं, उसकी बिलोंगिंग्स को जब वो खोज लेती है, पा लेती है, so the objects evoke memories of her earlier life. So the objects, every object each had its own history. Okay, so whenever she saw all these things, it evoked a memory of her mother's earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. However, after just getting them all, the daughter did not take them back. She left everything behind and she resoluted that to move on without carrying any of these goods. Those belong to her mother. Okay, students? So this is a short description of the short summary of this lesson. Let's move toward the explanation of the lines. Lines के explanation पे चलते हैं. One line wise explanation होगा. Both it would be in the bilingual mode, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. So get ready to see the explanation. Okay, get ready. Do you still know me? I asked. I refer to Margaminko here. So narrator asked, do you still know me after when she searched the house which took the entire belongings of her mother, जो उसकी माँ के सारे सामान घर के जिस घर में थे, जब उसने बहुत सर्च करने के बाद जब उस घर को पा लिया, so she stand in front of the gate of that house and she asked the owner of the house, do you still know me? कि क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? The women looked at me searchingly. The women looked from top to down as if she was just scanning me. जैसे वो मुझे स्कैन कर रही हो पूरी बॉडी को, उसने मुझे देखा और उसने मुझे पूरी सर्च किया ऊपर से नीचे तक. She had opened the door a chink. Chink simply students, it is just posture of less than half opened door. Okay, जब कोई दरवाजे पे खड़े होकर आधे से ज़्यादा दरवाजे को बंद करके एक झरोखे से बात कर रहा हो या झरोखे से देख रहा हो, so this is called chink. Okay, she had opened door a chink.
आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो जब वो बहुत लेटरली वो मुझसे बात कर रही थी तो मैं उसके नज़दीक गई। आई केम क्लोजर एंड मैं उसके नज़दीक में आई एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और मैं उसकी सीढ़ियों पे जो डोर स्टेप्स थे वहाँ पे मैं आके खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, द लेडी रिप्लाइड ऑफ माई क्वेश्चन दैट नो शी डजेंट नो मी। उसने कहा कि वो मुझे नहीं जानती है। I'm Mrs. S daughter, okay? She replied that I'm Mrs. S daughter. उसने आंसर दिया, उसने फिर से ऐड किया कि मैं Mrs. S की डॉटर हूँ, okay? She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उसने दरवाजे पे she held her hand on the door, उस लेडी ने जो अंदर से बात कर रही थी उसने दरवाजे पे ऐसे हाथ रखा हुआ था अपना, ठीक है, एज दो मानो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे वो दरवाजे को और खोलना चाहती नहीं थी, जैसे वो रोकना चाहती थी कि दरवाज़ा और ना खुलने पाए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, ओके, उसके चेहरे से मुझे पहचानने जैसे कोई साइन नहीं मिल रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मुझे पहचान रही थी, वो मुझे रिकग्नाइज कर रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैट। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, उसने मुझे साइलेंस में एकदम उसने स्टेयर किया, उसने देखा, मुझे घूरा ना, शांति से उसने मुझे देखती रही। शी केप्ट ऑन लुकिंग, perhaps I was mistaken, okay? So the way the impression that she showed, it felt like कि शायद मैं ही गलत तरीके से गलत जगह पे आ चुकी थी। मैंने खुद से महसूस किया perhaps I was mistaken, शायद मुझसे गलती हो चुकी थी। I thought, मैंने सोचा, perhaps it isn't her, मैंने सोचा कि शायद ये वो नहीं है। I had seen her only once, as she had seen her only once, उसने उस लेडी को केवल एक ही बार देखा था, फ्लिटिंगली एंड मीन्स बहुत जल्दी में उसने उनको देखा था, एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और जो कि कई वर्षों पहले था। तो इसलिए she was not properly recognizing her, okay, and the lady of course she was also not recognizing her, okay. So it was most probable that I had rung the wrong bell, okay. So इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि शायद मैंने जो है गलत डोर पे बेल रंग कर दिया था, बेल बजा दिया था। तो उसने ऐसा फील किया कि शायद मैंने गलत दरवाजे को नॉक कर दिया था। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, ओके। वुमेन अंदर जाने वाली थी एंड स्टेप्ड टू द साइड, वो थोड़ा सा साइड होती है अंदर की तरफ अपने दरवाजे से। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, ओके, बट as suddenly I just took my eyes on her cardigan, which was not, I straightly recognized that it was nothing but my mother's cardigan, okay, which she knitted with green wools. So उसने उसको पहचान लिया कि वो उसकी माँ की ही कार्डिगन को उसने पहन रखा था। So the wooden buttons were rather pale from washing, okay. जो वुडन बटन थे उस कार्डिगन के वो ऑलमोस्ट फेड अप हो चुके थे, थोड़े पीले से पड़ गए थे, मुरझा से गए थे, जैसे बार बार धुलने की वजह से उसका कलर फेड अप हो गया था। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं बार बार उसकी कार्डिगन को ही देखे जा रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने अपने आप को और ज़्यादा जो है दरवाजे के पीछे छिपा लिया। बट आई न्यू now that I was right, but it let me an assurance that I was at the right place. अब मुझे थोड़ा सा यकीन होने लगा था, मैं जान गई कि मैं अब सही जगह पे थी। I was at right. Well, you knew my mother, I asked, okay, मैंने उससे कहा कि वैसे आप मेरी माँ को जानती थी, okay. Have you come back? Said the woman, okay. Woman said, have you come back मीन्स तुम कहाँ से आई हो, हैव यू कम बैक, या तुम कब ये कहाँ से, इस तरह से उसने क्वेश्चन किया कि क्या तुम वहाँ आई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओके। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई भी वापस नहीं आया, ओनली मी, केवल मैं, ओके। सो द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसके बाद वो मेरे
पीछे जो है एक पैसेज, एक गलियारा की तरह था, एक गैलरी टाइप की थी, वहाँ से होते हुए दरवाज़ा जो है बंद हुआ और एक गैलरी से दिखाई पड़ी। अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, और एक मस्टी, एक जो कमरे की जो एक नमी सी होती है, वो एक उसकी महक सी जो है अचानक से आई। ओके, आई रेग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, मैंने पछतावा किया, आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। ओके, उसने कहा कि मैं यहाँ पे स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। और जिस तरह से वो लेडी बहुत जल्दी में दिख रही थी, तो उसको इंसिस्ट करना पड़ा कि मैं बहुत दूर से ट्रेन से स्पेशली आई हूँ, एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, कि मैं तुमसे कुछ देर, थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वीमेन। लेकिन महिला ने जो है उसने स्ट्रेटली कह दिया कि इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, मेरे लिए ये सुविधाजनक नहीं है कि मैं तुमसे अभी बात कर सकूं। एज इफ़ यू नो शी वॉज प्रिटेंडिंग, कि जैसे वो बहुत जल्दी में हो, बहुत ज़रूरी काम से जा रही हो, इसलिए बार बार वो जो है वो दरवाजे को बंद करने की फिराक में थी। सो आई कैन सी यू अनदर टाइम। ओके, उसने कहा कि मैं तुमको अभी नहीं मिल सकती। ओके, अनदर टाइम, ट्राई अनदर टाइम, फिर कभी आना, इस सेंस में उसने कहा। सी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। ओके, और उसके बाद उस लेडी ने जो है अपना सिर हिलाया एंड कॉशियसली, बहुत सावधानी से उसने दरवाजे को बंद कर दिया। द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। ऐसे उसने दरवाजे को बंद किया जैसे कि घर के अंदर कोई डिस्टर्ब ना हो, जैसे कोई हो और डिस्टर्ब हो रहा हो, इसलिए उसने बहुत सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। ओके, डोर स्टेप पे जहाँ पे मैं थी, मैं वहीं पे खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। ओके, और उस विंडो की जो कर्टन होती है वो थोड़ा सा मूव होती है, थोड़ी सी ड्रैग की जाती है। उसने देखा कि जो कर्टन होता है फ्रंट में विंडो के पास, वो थोड़ी सी मूव होती है। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे विंडो के पीछे से जो है मुझे घूरता या देखता है। एंड वुडंट हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और उसके बाद फिर जैसे वो पूछता हो कि मैं क्या चाहती थी। ओके, ओ नथिंग, उसने रिप्लाई किया कि नहीं, कुछ भी नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, उस विमेन ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं पूछना है, जानना है। ओके, सो सी स्ट्रेटली रिफ्यूज्ड हर टू टॉक। उसने उसको सीधे मना कर दिया, क्योंकि एक्चुअली वो जो वुमेन थी, हर नेम वॉज मिसेस डॉर्लिंग। ओके, सो मिसेस डॉर्लिंग जो थी, शी वॉज अ मेड इन हाउस ऑफ मिसेस एस, who was the mother of मार्गामिंको। सो उसके घर पे वॉर के पहले, हॉलैंड और नाजीज़ के बीच में वॉर के पहले, वो उसके सारे सामान को एक एक करके, उसकी मदर की इच्छा से ही वो उसके सारे सामान उठा लाती है। ठीक है, उसकी मदर ने डिस्प्लेस होने से पहले, या फिर कह सकते हैं कि मरने से पहले, उसने एक एड्रेस दे रखा था। वो एड्रेस सेम था जहाँ पे वो आज सर्च करने के बाद खड़ी थी। बट द लेडी हु वॉज इन साइड, शी वॉज रिफ्यूजिंग टू रिकग्नाइज हर, वो उसको पहचानने से मना कर रही थी। सो दैट वॉज द डिलेमा बिफोर द मार्गामिंको, द नरेटर ऑफ द स्टोरी। Okay, so let's move further. I looked at the nameplate again. I felt like, in a doubt I just stood over there. और मैंने महसूस किया कि फिर कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। Then I looked at the nameplate again. इसके बाद मैंने नेम प्लेट को दोबारा से देखा। Darling, it said. It was written Darling. नेम प्लेट जो है बोर्ड पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स में डॉर्लिंग लिखा हुआ था। ऑन द वाइट एनेमल, वाइट शीट पे, वाइट प्लेट पे ब्लैक कलर से डॉर्लिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम्प मीन्स खिड़की के ऊपर जो हिस्सा होता है, गेट के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, अ बिट हायर, थोड़ा सा ऊंचाई पे, द नंबर 46, और थोड़ी ऊंचाई पे उस पर ना जो जैमर्स टाइप के होते हैं, जो गेट के जैमर्स होते हैं, उसके ऊपर
जैम कहते हैं उसको, उसके ऊपर या ना थोड़ी सी ऊंचाई पे नंबर प्लेट भी लिखा हुआ था, उसमें नंबर 46, हाउस नंबर 46 भी लिखा हुआ था. Okay, both the name and the house number was matching with the name and the house number that her mother told her a few years ago. Okay, so everything was getting matched, but the lady inside, she was refusing to identify her. That was the dilemma. Okay students, so this is what the explanation for today. आज की लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं. नेक्स्ट डे हम फिर से एक न्यू लेक्चर के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे. टिल देन, you enjoy yourself. Thank you and have a good day.